Hello everyone, welcome to our channel Real Source Education. In this video, we will see lesson number 10 Disaster Management for 7th Standard English Medium. In last lecture, we have completed the first page for this lesson, page number 64. In this lecture, we will start from page number 65. So, let's get started. कॉजेज ऑफ फैमिन मतलब अकाल के कारण. ड्रॉट, हैवी रेन्स एंड फ्लड, क्रॉप्स गेटिंग वॉश्ड अवे और डैमेज इन द फ्लड. Environmental changes such as temperature change, storms, cold waves or fog damage of crops by animal like mice and rats, attack of pests, locusts or diseases of crops, or natural calamity like earthquake, etc. are some of the causes of famine. Of these, droughts is the main cause. Man-made causes of famine include war, internal unrest, absence of transport routes, uncontrolled population growth, etc. तो अकाल के क्या क्या कारण हैं? सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़ में फसलों का बह जाना अथवा फसलों का नुकसान होना, तापमान में परिवर्तन, तूफान, ठंडी हवा, कोहरा जैसे पर्यावरण के परिवर्तन. इसी प्रकार फसलों पे कीड़े लगना, रोग लगना, टिड्डे, चूहे और घूस आदि प्राणियों द्वारा होने वाली फसलों की हानि, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आदि अकाल के कुछ कारण है. इनमें से सूखा पड़ना अकाल का मुख्य कारण है. अकाल के मानवीय कारणों में युद्ध, अंतर्गत अशांति, यातायात के लिए मार्गों का अभाव, लोक संख्या वृद्धि आदि का समावेश भी होता है. नेक्स्ट पैरा. देयर आर रिकॉर्ड्स लॉस ऑफ लाइफ कॉज्ड बाय severe famine in various parts of the world. Asia has turned out to be the most famine affected continent of the world. A majority of the famine occurred in a drought-prone and flood-affected regions. Among the most dreadful famine that have occurred in the world are the famines that affected India and China. तो विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भयानक अकाल पड़ने से जनहानि होने के समाचार ज्ञात हैं. एशिया विश्व का प्रमुख अकालग्रस्त महाद्वीप है. ज़्यादातर अकाल सूखे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पड़े हैं. विश्व में जो भी भीषण अकाल पड़े हैं उनमें भारत और चीन अकाल का प्रमुख है. नेक्स्ट. आर वी रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिन? वाटर शॉर्टेज, increasing the balance between rainfall and population is disturbed. 2 number. Though there has been a very high rise in the production of food grains as a result of Green Revolution, the balance of the environment has been lost due to use of chemical fertilizer, pesticides and weedicides. Third, unlimited lifting of water for erosion of land. And fifth, misuse of water. तो पहला, क्या हम अकाल के लिए उत्तरदायी हैं? 1. बारिश और जनसंख्या का संतुलन बिगड़ने से पानी का अभाव बढ़ रहा है. दूसरा, हरित क्रांति के कारण अनाज उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि तो हुई, पर रासायनिक खादों, कीटनाशकों, तृणनाशकों का उपयोग से पर्यावरण का संतुलन नष्ट हो चुका. थर्ड, पानी का अमर्यादित दोहन करना. 4. मिट्टी का क्षरण होना. और 5th, पानी का दुरुपयोग करना. नेक्स्ट वन. इन द पास्ट,
इतिहास के पृष्ठभाग से। Famines are not a new phenomenon. The problem of drinking water, food, and fodder for animals date back to historic times. Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Shahu Maharaj implemented many schemes to overcome the famines of their time. Their water supply and water storage scheme are ideal even in today's circumstances. You can make schemes like these to face future crises and disasters, which will be of use not only in your own life in the future but also for society at large. Malik Ambar implemented a canal scheme for drinking water in Aurangabad. It exists even today. Collect more information about it. तो इसमें क्या बताया है? अकाल कोई आज के समय की समस्या नहीं है। पीने के पानी, भोजन और जानवरों के चारे का अभाव अतीत में भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शाहू महाराज के कार्यकाल में भी अकाल पर नियंत्रण करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई। उनमें पानी वितरण और पानी भंडारण योजना आज की परिस्थिति में भी आदर्श है। आने वाले संकटों और आपदाओं का सामना करने के लिए तुम भी ऐसी योजनाएं तैयार करते हो जो केवल तुम्हारे जीवन के लिए नहीं अपितु समाज के लिए भी उपयोगी हो सकती है। औरंगाबाद में मलिक अंबर ने पीने के पानी के लिए नहर योजना कार्यान्वित की। वह आज भी अस्तित्व में है। इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करो तो जो कैनल नहर, इसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। नेक्स्ट है what can we do to ease the severity of famine? I planned usage of water and rescue of water to proper planning of water conservation and harvesting at local level, large scale plantation of trees and prevention of deforestation, for making appropriate changes in plans, taking to account the weather forecast. तो अकाल की तीव्रता को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो नंबर 1, पानी का योजनाबद्ध उपयोग तथा पुनर्उपयोग करना। 2, स्थानीय स्तर पर जल संधारण के लिए योजना बनाना। 3, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना और वृक्षों को तोड़ने से बचाना। और 4, जलवायु में संभावित परिवर्तनों के पूर्वानुमान के अनुसार योजना में परिवर्तन करना। लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन, नो फेमिन, नो लैंड इरेशन। नहीं अकाल, नहीं मिट्टी का क्षरण, अब हम करेंगे वृक्षारोपण, एक स्लोगन है। कंपोज अ वैरायटी ऑफ सच स्लोगन्स एंड यूज देम ड्यूरिंग इन्वायरमेंट अवेयरनेस रैलीज। तो जब भी आप ऐसे प्रभात फेरी करते हो तो विभिन्न नारे तैयार करके प्रभात फेरी के समय इसको उपयोग में लाना है। नेक्स्ट पेज। So that much only for this lecture. In next lecture we will see the page number 66 for 7th standard lesson number 10 English medium. So till then, goodbye.